Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to solve some more numericals. Okay, the unsolved part from Sandeep Garg book, Microeconomics, class 11th. Okay, elasticity of demand is the chapter. We have already done few practicals, but now some other headings under which few numericals are given in the book. We are going to start that. Okay, and if you want more solve numericals like this, hit the subscribe button and keep learning with me. Okay, so I'm going to share it on the screen first here. Those who don't have the book, they can get the screenshot. Okay, आपके book में भी इसी तरह के कुछ मिलते जुलते ही questions होंगे, right? So I'm going to start it. Please take the screenshot, most probably till 13. Three questions we are going to do today, okay? And here in the question, we can just easily see that calculation of price or quantity. It means elasticity of demand is given. Earlier in previous questions, what we have to calculate? Elasticity of demand, okay? But in this question, there is a twist. That is, you need to calculate price or quantity, okay? It's missing and elasticity of demand is given, okay? So let's see that how we are going to find out. Just wait for a while. Okay, here we have I'm going to write the heading here. Calculation of price or quantity. I'm writing just in a short quantity, okay? You need to calculate this when elasticity of demand is given. This is the condition, okay? Earlier we need to find out ED, but now in this we need to find out that is price or quantity, जो भी नहीं given है, right? So this is the heading. So question number 11. Sandeep Garg, okay? Okay, now let's just start here. First, I'm going to read it. आपने already screenshot ले रखा है. The coefficient of price elasticity of demand for a commodity is 0.2. So elasticity of demand is equals to 0.2. ये given है आपके पास, okay? Now इसमें क्या when price was 10 per unit. तो price क्या है 10 था. Then quantity demand is what 40 units and quantity was 40, right? If the price falls to if the price falls to 5 यानी कि P1 आपका 5 है, you need to find out Q1, okay? So delta P equals to P1 minus P, 5 minus 10 equals to minus 5, and delta Q equals to Q1 minus Q, right? यही हम अभी तक फॉर्मूलाज लगा रहे थे इसमें कैलकुलेशन में, ओके? तो अब हमें डेल्टा क्यू इसका मतलब है नहीं पता है, क्योंकि Q1 वी नीड टू फाइंड आउट. तो इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन मार्क है डेल्टा क्यू, राइट? सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल राइट द फॉर्मूला ED equals, that is elasticity of demand equals to delta Q upon Q into P upon delta P. This is going to be the formula. जो पहला वाला फॉर्म था वही है, सेम एज इट इज. अब ED देखो हमें गिवन है ना, तो हमने लिखा 0.2, ओके? 0.2 is equals to delta Q. We need to find out, तो उसको हम as it is ऐसे लिख देंगे. Q आपका कितना है? Q है 40 इंटू प्राइस प्रीवियस कितना था 10 था ओरिजिनल, एंड P1 कितना हो गया डेल्टा P बल्कि लिखेंगे P1 नहीं, minus 5. Now simplify it. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 ones are 2, 20, राइट? तो अब हम कह सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, ठीक है? तो अब बल्कि इसको और इस तरह कर दिए, जस्ट वेट हियर, और सिंप्लीफाई कर लो, जस्ट वेट.
जो वैल्यूज है वो सब रहेंगी, बस मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 0.2 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू कितना है आपको ये फाइंड आउट करना है, अपॉन क्यू इज 40 इंटू पी इज 10 अपॉन डेल्टा पी इज -5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 इंटू -20। -20 कैसे आया ये? ओके, ये -20 कैसे आ रहा है? 4 इंटू -5 इक्वल्स टू -20। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको पता रहे -20 कैसे आया। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू। ओके, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 0.2 इंटू -20, you will get this one. 0.2 into 20, so you will get 4। 4 किसका आएगा? ये माइनस का, तो माइनस का साइन है तो 4 माइनस, ये आया आपका, ठीक है। तो अब क्या है, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे अब हम? डेल्टा क्यू कैसे? चेंज इन क्यू। ओके, तो चेंज इन क्यू कैसे आ जाएगा? ये 40 था, यहाँ पे जैसे प्राइस कम होगा तो क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस जैसे ही कम होता है डिमांड हमारी हमेशा बढ़ जाती है। तो हम इस क्या करेंगे, जो एक्चुअल हमारा क्यू था उसमें ऐड कर देंगे हम जो हमारा आंसर आया है, डेट इज आपका ये डेल्टा क्यू, ठीक है। सो यू विल गेट Q1। Q1 मतलब कितना, जो क्यू ऑलरेडी आपका 40 था, प्लस मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू आपका निकला है -4। माइनस का आपको कोई जरूरत भी नहीं है, राइट, माइनस का इग्नोर करो साइन, जस्ट यू विल ऐड 4। ओके, यानी कि इसके क्या होगा, एज द प्राइस डिक्रीजेस, हम वही वाला लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। एज द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। सो प्राइस यहाँ पे देखिए डिक्रीज कर रहा है तो हमें क्वांटिटी इंक्रीज आएगी। तो 44, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने गलत कर दिया, here you have 44, that is the Q1। So this is your 44 units is your answer। Okay, so 44 units ये आपका क्या है, Q1। I hope you understand the answer। Please take the screenshot। I'm going to do question number 12। Okay, so question number 12 में क्या है, again ED आपका given है, ED equals to -2। यहाँ पे प्राइस आपका गिवन है 10। ओके, प्लीज रीड फ्रॉम द क्वेश्चन और वी नीड टू फाइंड आउट P1 एंड Q कितना है, सपोज वहां पे 100 था एंड Q1 इक्वल्स टू 50। सो डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P होना चाहिए, लेकिन हमें अभी ये फाइंड आउट करना है, राइट। एंड डेल्टा Q आपका क्या होना चाहिए, Q1 माइनस Q। सो यू विल गेट 50 माइनस 100 equals to -50। इतना हो गया। now put the formula ED equals to delta Q upon Q into P upon delta P equals to delta Q कितना आपका आया है, -50, राइट, एंड Q कितना है आपका 100 है, राइट, इंटू P कितना गिवन है 10, और डेल्टा P मुझे नहीं पता है बिकॉज P1 इज नॉट गिवन, एंड ED का -2। नाउ सिंप्लीफाइड, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -2 into delta P equals to -5। So delta P equals to -5। ये simple maths है, right? So you will get 2.5, right? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस देखिए क्या होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी ये जो है यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है। तो सेम जब प्राइस बढ़ेगा तभी क्वांटिटी कम होगी। तो इसका मतलब है क्या होगा, प्राइस आपका कितना होगा, 10 में हमने कितना प्राइस जोड़ दिया होगा, ओके 2.5 हमारा आया था, तो हमने डेल्टा पी के लिए क्या किया, ठीक है ना, चेंज इन पी हम निकाल रहे थे, तो 10 प्लस 2.5 कर देंगे, जो आंसर हमारा आया चेंज इन पी। तो हमारा ये P1 कैसे निकला कि हमने इसको जो है ऐड कर दिया, जो आपका पुराना पी था, प्रीवियस पी था वो, प्लस चेंज इन पी,
तो आगे 12.5 is the P1 answer. Take the screenshot. Now last question of this today's video is question number 13, right? Here you have given का जरूर लिख लेना ताकि हर चीज बाकी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी. ईडी हमें पता है ऑलरेडी गिवन है, तो ईडी इज -2, Q इज इक्वल्स टू 160. आपको स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी दे रखा है. Q1 फाइंड आउट करना है, इसकी वजह से हमें डेल्टा Q भी नहीं पता है. देन P एंड P1 गिवन होगा यहाँ पे, तो P आपका 8 है एंड दिस P1 इज 6. डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P, 6 minus 8 equals to -2. Okay, now put it in the formula. ED equals to delta Q upon Q into P upon delta P. तो ED कितना है -2, डेल्टा Q कितना है मुझे नहीं पता, मैं एज इट इज इसको लिख दूंगी. Q आपका 160 है, इंटू P कितना है 8 अपॉन डेल्टा P इज माइनस. ओके, नाउ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 20. ओके, ना इसको आप क्रॉस कर लिएगा. -2 इंटू 22 जा 40. ओके, इक्वल्स टू डेल्टा Q इक्वल्स टू -18 इक्वल्स टू डेल्टा Q. ओके, अब माइनस का कोई साइन का जरूरत नहीं है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. ना व्हाट वी विल डू हियर, 80 यहाँ पे क्या है क्वांटिटी है. अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है. प्राइस देखो घट रहा है, इसका मतलब है क्वांटिटी में ये ऐड हो जाएगा. 160 प्लस 80 240 इज Q1. बात समझ में आ गई. फॉर्मूला वही होगा, प्राइस जैसे ही कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ रही होगी. तो प्राइस इसमें कम हुआ, हमने ऐड कर दिया 160 में, जो हमारा आंसर आया वो हमने ऐड ऑन कर दिया. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ओके, hope you like the video, understand it very well. Okay, and please do like, share and subscribe my channel for more numerical solutions. Okay, thank you so much.